Children, in today's class, we shall start with do this page 275, chapter number 14 of the topic symmetry. I am reading the question: which capital letters have just one line of symmetry and which capital letters have rotational symmetry of order 2? Okay, here the alphabets are given: Z, S, H, O, E, N, C. We have to find out whether in these alphabets they have line of symmetry or not. If they have, how many lines of symmetry are there? Then does the figure possess any rotational symmetry? And if there is rotational symmetry, what is the order of the rotational symmetry? So we shall take each part one by one. So first I will start with Z. Okay, now see here, this is the original figure, and in this I will show whether it is having line of symmetry or rotational symmetry. ठीक है, अब line of symmetry के लिए, what is line of symmetry? Line of symmetry is the line which divides the figure into two equal parts. Okay, if it divides, then we say that the figure has line of symmetry, otherwise it doesn't have. Okay, now you see here, I fold it horizontally. See, when you are folding it horizontally, are you able to see some shiny part here? It means both the parts did not overlap. I'll turn it and show you. See here also, you can see here the shiny part. It means this portion is not overlapping with this portion. It means it doesn't have horizontal line of symmetry. Now we see the vertical line of symmetry. Let us fold this figure like this. See, I am folding it vertically. Now you see here, I have folded it vertically. अब वर्टिकली में भी देखो, ये शाइनी पोर्शन और ये अंदर ये ग्रे पोर्शन अलग अलग दिख रहा है. ठीक है, आर यू एबल टू सी चिल्ड्रन? जस्ट सी. So it means it does not have vertical line of symmetry also. Okay, neither this Z has horizontal line of symmetry nor the vertical line of symmetry. All right, so here this written line symmetry, so we will write here no, and number of lines of symmetry we will put dash because it does not have any line of symmetry. Okay, now let us check up whether it has rotational symmetry or not. Okay, so this is the original figure. Let it be like this. I will show the rotation in this. Okay, let this point be the center of rotation. Let this point be the center of rotation where I have put the tip of the compass. Okay, now let me rotate it. I will rotate this. See, I have rotated this Z, rotated this through a 90-degree angle. Now this is vertical and this is horizontal. If I put this on this, it will not overlap. Just see, if I am putting like this, it is not overlapping. So again I give the rotation of 90-degree. See here, I have given again the rotation of 90-degree. So see, this becomes similar to this, and if you place this on this, it will overlap, right? Again you give rotation to this Z. Here these two will not overlap. Again you give rotation to that. You will find that these two are similar, and if you place this on this, it will overlap. Okay, so when we rotated this Z through 360-degree, मतलब 360 किस तरह, one rotation 90, second rotation 120, third rotation 270 and fourth rotation 360. तो जब ये हमने 4 बार 90-90 करके रोटेट किया,
तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया? हमने ऑब्ज़र्व किया कि 2 बार दिस फिगर लुक्ड एग्जैक्टली द सेम। देखो कैसे बार, यहाँ तो नहीं दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था, ये फर्स्ट बारी हो गई, फिर यहाँ नहीं दिख रहा था, फिर दोबारा यहाँ दिख रहा था, तो ये दूसरी बारी हो गई। सो 2 times द फिगर लुक्ड एग्जैक्टली द सेम, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन Z इज़ 2। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशनल सिमेट्री, वी विल से यस this Z possess rotational symmetry and order of rotational symmetry is 2. Is this clear? Right. Now I will remove this, children. Now coming to S. See here, I have placed these two S. Okay. Now clearly we can see that these figures do not have line symmetry. मतलब कहने का क्या है कि देखो, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करती हूँ तो ये देखो आपको कुछ अंदर से शाइनी वाला ब्राउन दिख रहा है, इसका मतलब ये और ये पार्ट्स कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ, ये देखो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं पार्ट्स, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एस में नहीं है। अब आप वर्टिकली करो, वर्टिकली में भी आप क्या करो, यूं करो, देखो आप कितना सारा ब्राउन और क्या क्या दिख रहा है इसमें, ये मैंने वर्टिकली किया हुआ है, ऐसे देखो, ये देखो, ये फोल्ड है वर्टिकली, इसमें आप देखो ये अंदर से आपको कुछ कुछ ग्रे दिख रहा है, पूरा ये जो ब्राउन कलर है वो नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकली भी नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एस में, फिगर एस में देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो वी विल राइट हियर नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री we cannot tell because line of symmetry does not exist, so there will be no lines of symmetry in it. Okay, now we have to check whether it has rotational symmetry or not. Okay, let it be the original figure, rotation I will show with this. Both have same shape and size. Now see here, suppose this is the center of rotation. Okay, now I am rotating this as through 90 degree. So what do you observe? These two figures, they will not overlap. Now see here, again 90 degree I am turning. Now you see this S and this S, they will overlap. अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगी तो दोनों overlap कर जाएंगे. Again I rotate through 90 degree. Now this is horizontal, this is vertical. If I place this on this, they will not overlap. Again now we will rotate it through 90 degree. Now see here, I have rotated it through 90 degree. What do you observe? These two figures look exactly the same. So while rotating through 360 degree, means 90 plus 90 plus 90 plus 94 times, we observe that this two S look same 2 times. कैसे देखो, दोबारा से देखते हो, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ सेम दिख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहे, फिर यहाँ दिख रहे हैं। तो हमने बेसिकली क्या है, 360 डिग्री का जब रोटेशन किया तो 2 बार ये एस सेम दिखे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन एस में रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 2. सो आई विल राइट हियर यस एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज 2. क्लियर है? ओके, now I remove this bit. I will take H. See here, this is H. This is one more H. It is not sticking. I'll just try it out.
this is our H. Okay, say this is the original position, and now this I will use to show horizontal and vertical symmetry. Now see here, if I take this H, I fold it vertically. Now see here, what do you observe? That the two parts, see, overlap. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस H में वर्टिकल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है. अब आई एम फोल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली. ये देखो, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दिया. नाउ यू सी, दोनों तरफ से देखो, इस तरफ से भी देखो और इस तरफ से भी देखो, ये चिपका नहीं है. ठीक है, ये ऐसे करके देखो तो आप देखोगे कि ये कंप्लीटली फोल्ड हो जाते हैं. ये देखो, ये कंप्लीटली फोल्ड हो जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी. ये देखो, ये हॉरिजॉन्टली फोल्ड हो गया. ठीक है, और वर्टिकली मैंने पहले दिखाई दिया था. वर्टिकली मैंने दिखा दिया था. ये देखो ऐसे, ये देखो वर्टिकली फोल्ड हो ही गया, वर्टिकली भी फोल्ड हो गया और हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड हो गया. तो इसका मतलब क्या है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं इसमें? इट हैज़ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक हॉरिजॉन्टली, दूसरा वर्टिकली. तो H में हम लिखेंगे येस वी हैव लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इज 2. ओके, अब हम इसमें रोटेशनल सिमेट्री चेक करते हैं कि है या नहीं है. देखो, मैंने ये सेंटर ऑफ रोटेशन लिया. अब मैं H को रोटेट कर रही हूँ 90 डिग्री से. ये देखो, मैंने रोटेट किया. ये दोनों फ़र्क दिखते हैं, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है. अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे. अब फिर से मैं 90 डिग्री से इसको रोटेट कर रही हूँ. अब देखो, ये दोनों एक जैसे हो गए. अब मैं अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखूँगी तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे. अब मैं फिर से इसको 90 डिग्री का रोटेशन दे रही हूँ. अब ये फिर दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे, ओवरलैप नहीं करेंगे. फिर से मैं 90 डिग्री का रोटेशन दे रही हूँ. अब देखो, बिल्कुल एक जैसे हो गए और ओवरलैप करेंगे. तो मैंने जब 360 डिग्री का रोटेशन दिया, 360 डिग्री का रोटेशन का मतलब 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90, 4 बार मैंने 90 किया तो बेसिकली 360 का रोटेशन हो गया. तो ये जो H है, 2 बार हमें खाली ऐसा लगा कि ये और ये सेम है, और अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो ओवरलैप हो जाएगा. एक बार फटाफट से देख देते हैं इसकी पोजीशन. देखो, ये रहा, इस पोर्शन में नहीं है, इस पोजीशन में ओवरलैप करेगा, फिर इस पोजीशन में फिर नहीं करेगा, फिर इस पोजीशन में करेगा. तो देखो, 360 का राउंड लेने में 2 बार ऐसा हुआ कि ये दोनों पोजीशंस सेम रही. मतलब इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप करेगा. तो इसका मतलब क्या है, H में रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस. और कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है? 2, क्योंकि 2 बार ही ऐसा हुआ है कि ये और ये ओवरलैप करने की कंडीशन में रहे. ठीक है, फाइन. लेट मी रिमूव दिस वन. अब हम नेक्स्ट देखते हैं O. ये देखो, ये एक O है और ये है एक O. देखो, O और सर्कल में कंफ्यूज मत होना. O थोड़ा सा ओवल है और सर्कल बिल्कुल गोल होता है. ठीक है, दिस इज अल्फ़ाबेट O. अब हमें ये बताना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं. तो हम इसको क्या करते हैं, हम पहले से हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर देते हैं. ये देखो, मैंने इसे हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, दोनों तरफ से देखो फोल्ड हो गया. तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है. अब
इस फिगर को हम वर्टिकली फोल्ड करते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टली किया था, अब वर्टिकली कर देते हैं। ये देखो, मैंने इसे वर्टिकली फोल्ड कर दिया, तो ये वर्टिकली इस तरीके से फोल्ड हो गया। दिस इज़ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब फिर से इसको दूसरी तरफ से देखो, ये वर्टिकली फोल्डेड है। ठीक है, तो अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैसी बनेंगी? ये देखो, एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बन जाएगी? ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। इसका मतलब ओ में लाइन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? 2 हैं। अब हमको ये चेक करना है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है कि नहीं। तो इसको हम ओरिजिनल पोजीशन समझ लेते हैं, ये वाले को, क्योंकि इसमें मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई हुई है। इसको हम रोटेट करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे मुझे हाथ से रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेंटर तो ले नहीं सकती ना मैं। देखो, मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करती हूँ। 1 मिनट, ये देखो, मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री से, तो ये और ये सेम नहीं है। ठीक है ना, फिर से मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री से। अब देखो, ये दोनों सेम है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी तो ओवरलैप कर जाएगा। फिर से मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री से। अब देखो, फिर ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। इसको इसके ऊपर रखती हूँ तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। फिर से मैंने रोटेट किया इसको 90 डिग्री से, तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। और अगर मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया? जब मैंने इसको रोटेट किया थ्रू एन एंगल ऑफ 360, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन एंड देन फोर्थ पोजीशन, तो ये देखो, ये 4 पोजीशंस में 2 बार ऐसा हुआ कि फिगर लुक्ड एग्जैक्टली द सेम, ताकि अगर हम इसको इसके ऊपर रखें तो ये ओवरलैप हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 2 and rotational symmetry exist in these figures. So I will write here, yes, rotational symmetry exists and order of rotational symmetry is 2. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट we have E, right? We will place one E here. ठीक है, दूसरा E हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको स्टिक कर देती हूँ, नहीं तो ये निकल जाता है बार बार। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि लीनियर सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं। देखो, ये ई है। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ हॉरिजॉन्टली। ये देखो, ये ई हॉरिजॉन्टली फोल्ड हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। मैं वापस इसको खोल देती हूँ, वर्टिकली इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि मैं ये कहाँ जाके मिलेंगे, ओवरलैप कहाँ करेंगे। तो खाली इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। कैसे? ये देखो, ये रही, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री।
दिस एग्जिस्ट्स इन ई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई में यस लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट्स एंड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है, एक ही है ये। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ये देखो, इस फिगर में देख लेते हैं कि कैसे होता है रोटेशन। मान लो मेरा ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है, मैं इसे रोटेट करती हूँ 90 डिग्री से। ये देखो, ये और ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वापस रोटेट करती हूँ 90 से। अब ये देखो, ये इस डायरेक्शन में है और वो उस डायरेक्शन में है, नहीं ओवरलैप हो सकते। फिर से देखो, मैंने फिर से 90 का रोटेशन दिया, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, नहीं ओवरलैप करेंगे। फिर से मैंने इसको रोटेशन दिया 90 डिग्री का, देखो। तो अब ये और ये आपको सेम दिख रहे होंगे कि मैं इसको उठाऊंगी और इस पर रखूंगी तो ये ओवरलैप हो जाएगा। तो मैंने जब इसको 360 का रोटेशन दिया, मतलब 90 करके 4 बार, देखो जैसे ये हुआ, फास्ट करके बताती हूँ, 1 2, 1 मिनट दोबारा से करती हूँ। देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो 4 बार 90 का हमने रोटेशन किया, दैट इज़ टोटल 360 डिग्री का रोटेशन हुआ। तो हमने क्या देखा, सिर्फ एक ही बार यही वाली पोजीशन है, एक तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ये दोनों फिगर सेम दिख रहे थे। मतलब अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूँगी तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फिगर में देयर इज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1, इट इज़ नॉट मोर देन 1। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच कैपिटल लेटर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। तो इसमें ऑर्डर 2 की रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो, ठीक है। और यहाँ पे हम डैश डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 नहीं है, राइट। वैसे तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक बार तो सभी फिगर्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नाउ I will remove this and next let us consider n। इसको हटा देते हैं। वापस पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखते हैं n। ये देखो, ये है n ओरिजिनल फिगर, और इस दूसरे वाले से मैं रोटेशन दिखा दूँगी। अब आप ये देखो, इस फिगर को, इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो कहाँ कैसे जाएंगे, नहीं होगा, कहीं से कुछ नहीं होने वाला। ये देखो, ऐसे भी फोल्ड करोगे तो सब उल्टे पुल्टे दिख रहे हैं ऐसे। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो, और यहाँ डाल देंगे हम डैश, कि इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अब हमको चेक करना है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं। चलो हम इसका रोटेशन करते हैं, चिपक रहा है ये, कोई बात नहीं। सपोज़ मेरा ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करती हूँ, ये देखो, इसको रोटेट कर दिया मैंने 90 डिग्री से, ठीक है। तो और ये तो अलग दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। अब फिर से 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं इसको, ये देखो। तब जब दोबारा से रोटेट किया तो आप देखो, अब ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं, इसको इसके ऊपर रखूँगी तो ओवरलैप कर जाएगा। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है, सेकंड पोजीशन पर ये दोनों सेम दिख रहे हैं। अब फिर से 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, ये देखो। तो अब ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा। ये थी थर्ड पोजीशन।
अब इसको वापस फिर से रोटेट करते हैं, ये 4th पोजीशन। तो अब आप फिर से 90 डिग्री से रोटेट किया है, तो अब ये देखो ये दोनों फिर से सेम दिख रहे हैं। अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप करेगा। तो इसका मतलब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जब मैंने n को 360 डिग्री का रोटेशन दिया, तो इस 360 डिग्री के रोटेशन में 2 बार ऐसा हुआ कि ये दोनों फिगर्स अलाइक थे, और अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप करेगा। फास्ट रोटेशन दिखा देती हूँ एक बार, देखो 1 मिनट। ये रही फर्स्ट पोजीशन, ये रही सेकंड पोजीशन, फिर ये रही थर्ड पोजीशन, और फिर ये रही 4th पोजीशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पोजीशंस पे फिगर एग्जैक्टली सेम था। तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, और यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है सी करते हैं, सी पार्ट को। ये रहा सी। इससे मैं शो कर दूंगी। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करती हूँ, ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टली इसको फोल्ड कर दिया, ये देखो, तो ये क्या हुआ, फोल्ड हो गया। दोनों पार्ट्स देखो फोल्ड हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी में लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, और वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब आप अगर इसको यहाँ से फोल्ड करोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस, एंड हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इट इज़ 1। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो मैं इस वाले फिगर में शो करके देती हूँ। ये देखो, ये इसको मान लेते हैं ओरिजिनल पोजीशन। अब मान लो ये मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहाँ से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको 90 डिग्री से रोटेट करो, कर दिया रोटेट। देखो 90 डिग्री से, तो क्या ये और ये सेम दिखते हैं? नहीं दिखते। अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप करेगा नहीं। अब फिर से देखो, इसको मैंने 90 डिग्री से रोटेट किया, ये इधर है और वो उधर है, तो भी नहीं दिखते एक जैसे। फिर मैंने इसको वापस फिर से 90 से रोटेट किया, अब भी ये दोनों सेम नहीं दिखते, क्योंकि इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा, सॉरी। फिर से अब रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री से, तो अब ये देखो ये फाइनल पोजीशंस में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो मैंने जब सी को 360 डिग्री से रोटेट किया, मतलब 4 पोजीशंस में, ये रहा 90 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन 90 डिग्री रोटेशन, फिर थर्ड पोजीशन 90 डिग्री रोटेशन, फोर्थ पोजीशन अगेन 90 डिग्री रोटेशन, तो मतलब 360 पूरा हो गया। तो खाली फाइनल पोजीशन पे दोनों सेम थे। इसका मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 तो एग्जिस्ट करती नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे और यहाँ पर डैश डाल देंगे, क्योंकि वैसे तो नो का मतलब ये नहीं है कि रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं, एक बार तो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब आप इसको पूरा घुमा के 360 से लाओगे तो तब वो सेम पोजीशन पे हो। बट क्वेश्चन क्या है कि हमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 पूछा गया है, तो वो ऑर्डर 2 नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है और यहाँ पे डैश लिखा है। इज़ दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो with this I wind up my class. In the next class I shall take up the next question of the exercise.